Greetings everyone. Today we will start our new chapter, that is chapter number 2, biological classification. As the name suggests, biological classification means living organisms को classify करना. How to classify biological entities or organisms. So we have these subtopics, that is kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia, viruses, viroids and lichens. So let's start beta. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organism for our own use for food, shelter and clothing. पहले क्या है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के बहुत अटेम्प्ट्स किए गए, बट वो साइंटिफिक नहीं थे. दे वर नॉट साइंटिफिक बट ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन यूज कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ फूड हम यूज कर रहे हैं या एज अ शेल्टर में हम उसको यूज कर रहे हैं या फिर क्लोथिंग में यूज कर रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन यूज वी क्लासिफाइड living organisms. But scientifically, Aristotle was the first scientist who classified the living organism and earliest to attempt a more scientific basis for classification. And he used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. And he also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. Clear? इसको और अच्छे से समझते हैं बेटा कि कैसे एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था. सी जस्ट अ सेकेंड. यस, if the living organisms, उसने क्लासिफाई किया प्लांट्स को भी एंड एनिमल्स को भी. करेक्ट? प्लांट को किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. किसमें? हर्ब, shrub एंड ट्रीज. हर्ब स्मॉलेस्ट प्लांट है हाइट में, उससे थोड़े से ज्यादा हाइट में जो प्लांट होते हैं उनको श्रब की कैटेगरी में रख दिया, और जो टॉल प्लांट्स थे हमारे उनको किस में रख दिया? ट्रीज में. तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने नहीं एरिस्टोटल ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया. एंड एनिमल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और एब्सेंस ऑफ आरबीसी. If animals having RBC, then he given the name that is anima. And if animals have not RBC, then he called anima. A means absent or E means presence. So this is the classification of Aristotle. He just simply classified plants into herb, shrub and trees on the basis of morphological characters, and classify animals on the basis of presence or absence of RBC. Correct? So this is the classification from the side of Aristotle. Now second attempt was done by our another renowned scientist, that is Linus. किसने किया बेटा? Linus ने. उसने क्या दिया बेटा? Two kingdom of classification, two kingdom system of classification. As the name suggests, two kingdom system of classification means we have two kingdom. One is plant and another is animals. Correct? और उसने
जो बेस लिया वो क्या लिया क्लासिफिकेशन का? सेल वॉल, लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है, ये बेस लिया उन्होंने। एरिस्टोटल ने तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे बेटा, लेकिन लिनस ने और बहुत सारे कैरेक्टर्स लेकर के बेटा इनको क्लासिफाई किया। लेट्स सी, इन लिनस टाइम अ टू किंगडम system of classification with Plantae and Animalia, which were two kingdoms, that is Plantae and Animalia. They were developed, that included all plants and animals respectively. Means in Plantae kingdom he put plants and in Animalia kingdom he puts animals. But this system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. अब सारे प्लांट्स के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक भी आ गए और सारे यूकैरियोटिक भी आ गए, और एनिमल्स के अंदर प्रोकैरियोटिक एनिमल्स भी आ गए और यूकैरियोटिक भी आ गए। ऐसा ही हुआ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ, यानी कि प्लांट के अंदर यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है, सेम विद द एनिमल ऑल्सो। और प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेटिक प्लांट भी रखे गए और नॉन फोटोसिंथेटिक भी रखे गए, यानी कि फंगस को भी प्लांट्स के अंदर ही रखा अकॉर्डिंग टू द लिनस, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन होती क्या है बेटा? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? आई विल टेल यू हियर। लिनस ने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे बेटा उनको क्या करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए? एक तो उसने सेल वॉल देखी थी। देखो सेल वॉल प्लांट के अंदर होती है, एनिमल के अंदर नहीं होती। तो जो ऑर्गेनिज्म बियर करता है सेल वॉल को, उसने रख दिया प्लांटी के अंदर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, जो लोकोमोट करते हैं उनको एनिमल्स में रख दिया, जो मूवमेंट करते हैं उसको प्लांट्स में रख दिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसने क्राइटेरिया लिया, यानी कि अगर वो खुद से खाना बना रहे तो उसको प्लांट्स में रख दो, दूसरों पे डिपेंड रह रहे तो एनिमल्स के अंदर रख दो। फोर्थ उसने लिया रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। अगर बाहर से स्टिमुलस आ रहा है तो एनिमल्स जो फास्टली उसको रिस्पॉन्ड करे उसको तो रख दिया एनिमल्स के अंदर, और जो स्लोली रिस्पॉन्ड करे स्टिमुलस को उनको रख दिया प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। तो मोस्टली जो लिनस ने किंगडम प्लांटी में रखे थे वो रखे थे बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। और एनिमेलिया में रखा प्रोटोजोआ, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। बट वो क्या नहीं बता पाया? दैट सिस्टम डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? इसके बाद आया बेटा हमारे पास थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन सा आया बेटा हमारे पास? थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये किसने दिया? ये दिया बेटा हैकेल ने। किसने दिया बेटा? दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर यू चिल्ड्रंस। हैकेल किसने दिया बेटा? ये हैकेल ने दिया। थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें दो किंगडम तो वही थे, एक थी प्लांटी और एक थी एनिमेलिया, करेक्ट। तीसरा जो किंगडम डाला वो डाला इसने प्रोटिस्टा। क्या डाला बेटा? प्रोटिस्टा डाला। और इस प्रोटिस्टा के अंदर ही इंक्लूडेड ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे ये सारे क्या थे? मोस्टली क्या थे? एक्वेटिक यूकैरियोट्स। क्या थे? एक्वेटिक यूकैरियोट्स थे, ठीक है। इसके अंदर वो सारी चीजें आ गई, फंगी आ गई, ठीक है, प्रोटोजोआ इसी के अंदर आ गया, एल्गी इसी के अंदर आ गई, बैक्टीरिया इसके अंदर आ गया,
ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन से किंगडम में रख दी उसने, प्रोटिस्टा के अंदर रख दी, और प्लांटी और एनिमेलिया से इसको हटा दिया, यानी कि और थोड़ा सा कोशिश की इसको अच्छे से क्लासिफाई करने की, बट नॉट दैट मच सक्सेसफुल अटेम्प्ट दिस वाज। इसके बाद बेटा हमारे पास आती है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद आती है हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आती है, और वो क्लासिफिकेशन दी थी बेटा कॉपलैंड ने। किसने दी थी, कॉपलैंड ने दी थी। उसने कौन सा किंगडम जो है वो ऐड किया होगा, कैन एनीबडी गेस? यस, वेरी गुड, he added another kingdom, that is, उसने कौन सा ऐड किया बेटा, मुनेरा। वेरी गुड। कौन सी क्लासिफिकेशन थी, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। वही फर्स्ट तो प्लेंटी, सेकेंड वॉज एनिमेलिया, थर्ड वॉज प्रोटिस्टा, एंड फोर्थ वन मुनेरा। अब उसने क्या किया, मुनेरा के अंदर उसने किसको रखा, उसने सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रख दिया। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को किसके अंदर रख दिया बेटा, मुनेरा के अंदर रख दिया। इसके अंदर आ गए आपके यूबैक्टीरिया एंड आपकी आर्कीबैक्टीरिया, जिसको मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, और ये किसने दिया था, कॉपलैंड ने। तो टिल नाउ फर्स्ट classification system was given by Aristotle, and he classified all the living organisms into 2 kingdoms, that is the plant. He generally classified plants and animals on the basis of morphological characters, simple morphological characters. Next, Linus had given 2 kingdom system of classification. 2 kingdom was plants and animals. Then comes Haeckel. He added 1 more kingdom, that is Protista, and then Copeland, who added the 4th one, that is the Munera. Clear है बेटा? Now come to the point. I will give you some extra information in between, जो भी मुझे useful लगेगा आपके लिए. Now come here. Classification of organisms into plants and animals were easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either categories. इस तरीके से जब क्लासिफिकेशन हो गई, हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, तो हमने काफी हद तक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया था ताकि हम उनको अच्छे से जान पाए, उनकी स्टडी कर पाए। लेकिन उनके अलावा बहुत ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे थे अगर हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करें। ठीक है, हैंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। भाई उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं निकला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। बिसाइड्स gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc. तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अलावा भी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड करने पड़ेंगे ताकि जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बचे हुए हैं उनको भी हम किसी ना किसी कैटेगरी में क्या कर सके, क्लासिफाई। जैसे सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। नेचर ऑफ वॉल, वॉल का नेचर कैसा है, मतलब कौन से मटेरियल से उसकी वॉल बनी है, क्या कॉम्पोजिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फूड कैसे ले रहा है। हैबिटेट, कैसे हैबिटेट में रह रहा है, लैंड पे है, वाटर में है। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली है, एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल में भी कौन सा मेथड है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है। सो दीज कैरेक्टर्स शुड बी इंक्लूडेड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म have hence undergone several changes over the time. तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हुए जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स have been a constant under all different
systems and the understanding of what group organism be included under these kingdoms have been changing. The number and the nature of other kingdoms also have been understood differently by different scientists over the time. अगर आप शुरू से देखो फ्रॉम एरिस्टोटल टू कॉपलेट, प्लांट एंड एनिमल किंगडम आर कांस्टेंट, हर एक सिस्टम के अंदर है, बट जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बचे हुए थे उनको हमने दूसरे किंगडम में बांटना शुरू कर दिया ताकि हम इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें. Now this is a table and I'll come on this table after understanding this paragraph. Now the man had come who classified all the living organisms in a systematic manner, and his system of classification accepted all over the world, that is R.H. Whitaker. In 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. What is the difference between Copeland's 4 kingdom classification and Whitaker's 5 kingdom classification? The difference is on the part of fungi. इसने एक दूसरे किंगडम को ऐड कर दिया, दैट इज द फंगी. क्लियर? इसके क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया था कि इसने सेल स्ट्रक्चर को स्टडी किया, इसने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी, सेल्यूलर लेवल की है टिश्यू. आई विल कम ऑन दिस टेबल दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशंस. ये क्राइटेरिया वो लेकर चला और उसने काफी हद तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया बेटा, क्लासिफाई कर दिया. Correct? Now come to this table. This table is very much important. Yes. The first characteristic we had taken, that is the cell type. Cell type means I am talking about prokaryotic, eukaryotic. Clear है? मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा, प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोटिक, फंगी के अंदर यूकैरियोटिक, प्लांटे के अंदर यूकैरियोटिक और एनिमेलिया के अंदर यूकैरियोटिक. सो प्रोकैरियोटिक कौन से किंगडम में आ गए? सारे प्रोकैरियोट्स आ गए मोनेरा के अंदर. देन सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है. मोनेरा के अंदर सेल वॉल होती है और बनी हुई होती है बेटा पॉलीसेक्राइड की और अमाइनो एसिड की. प्रोटिस्टा के अंदर देखें तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल होती है. फंगस के अंदर प्रेजेंट होती है लेकिन वो काइटिन की बनी होती है. प्लेंटी के अंदर प्रेजेंट होती है, वो सेल्यूलोज की बनी होती है. और एनिमेलिया के अंदर वो एब्सेंट होती है. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट फंगस की जो सेल वॉल है ना काइटिन से बनी होती है. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स the membrane around the nucleus. On the basis of, we had 2 type of cell, that is prokaryote and eukaryote. So in Monera it is absent because these are prokaryote. Otherwise all the members of these 4 kingdom, that Protista, fungus, Plantae and Animalia cell is eukaryotes. That means nuclear membrane will present. Automatically you can understand. नेक्स्ट वन इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा के अंदर जो बॉडी है वो सेलुलर है, सेल से मिलकर बनी है. प्रोटिस्टा के अंदर भी सेलुलर है. फंगस के अंदर सेल्स जो है वो ग्रुप बना के रहने लगी हैं और लूज लूज क्या बना दिया उसने, टिश्यू बना दिया. प्लांटे के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगी और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगी. एनिमेलिया के अंदर टिश्यू भी, ऑर्गन भी और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हमें देखने को मिलेगी. आई थिंक आपको एक बात पता होगी बेटा कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती कैसे है. देखो बेटा, पहले तो क्या होते हैं, सेल के अंदर कुछ सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, सेल. बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू. और जितना ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू के अंदर है ना वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है और कोऑर्डिनेटली काम करती है. बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन.
ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेट करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या बना देते हैं बेटा, पॉपुलेशन। और बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके क्या बना देते हैं, कम्युनिटी। ठीक है, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ की ऐसी होती है जिसमें टिश्यू डेवलप हो गए, तो कुछ इस कैटेगरी में लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। कुछ के अंदर ऑर्गन्स बन जाते हैं, तो कुछ इस कैटेगरी में आते हैं। कुछ के अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, तो इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना, जैसे हम हुए, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, तो बहुत सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटली काम कर रहे हैं, तो आवर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन में रखते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन को कम्युनिटी के अंदर रखते हैं। करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की फूड कैसे लेते हैं ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुद बनाते हैं, दूसरों से लेते हैं, दूसरों से भी लेते हैं, तो हमारे पास काफी टाइप है। जैसे कि मोनेरा की बात करें, इसमें ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, जिसके अंदर वो फोटोसिंथेटिक होंगे या फिर कीमोसिंथेटिक होंगे। फोटोसिंथेटिक का मतलब ये होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल से वो क्या बनाएंगे बेटा, ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे। करेक्ट। लेकिन आपके कीमोसिंथेटिक क्या करते हैं, केमिकल्स से बनाते हैं बेटा। किससे बनाते हैं, केमिकल से। अभी मैं ये चीज आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि क्या होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, क्या होते हैं कीमोसिंथेटिक हेटरोट्रोप्स, क्या होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। आई विल एक्सप्लेन यू। और इसके अंदर हेटरोट्रोप्स भी होते हैं जो दूसरों से अपना फूड लेते हैं, जिसके अंदर दो टाइप है, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। पैरासिटिक में तो वो किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रह के या अंदर रह के अपना फूड लेते हैं। सेप्रोफिटिक में क्या होता है, डेड एंड डिके मैटर पे फीड करते हैं वो। ठीक है, सो दे कम अंडर मोनेरा एंड दीज पॉइंट्स यू विल क्लियर व्हेन आई विल सेपरेटली डिस्कस विद यू ऑल द किंगडम्स। ना प्रोटिस्टा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं और हेटरोट्रोपिक भी शो करते हैं, दोनों टाइप के हैं। फंगस के अंदर प्रॉपर्ली हेटरोट्रोपिक होते हैं, वो या तो सेप्रोफिटिक्स शो करेंगे या पैरासिटिक। आई विल टेल यू दीज टर्म्स फर्दर। प्लांटी के अंदर ऑटोट्रोपिक होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमेलिया के अंदर सारे हेटरोट्रोपिक ही होते हैं, जिसके अंदर होलोजोइक और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब होलोजोइक क्या होता है बेटा, फूड मटेरियल को हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और बॉडी के अंदर ही डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है और उसको वो क्या कर लेते हैं बेटा, डाइजेस्ट कर लेते हैं। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द होलोजोइक, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर है। सेप्रोफिटिक में क्या होता है, बॉडी के बाहर फूड होता है, तो बॉडी के बाहर ही क्या है बेटा, जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करे जाते हैं और बाहर ही उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में कन्वर्ट करके और फिर क्या है उसको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, जो मेनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फंगस का। क्लियर है? यस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। The three domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into two domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain and thereby a sixth kingdom classification. You will learn about this system in detail at higher classes. Nothing else. One more scientist had given his sixth kingdom of classification and the scientist's name was Carl Woese. Carl Woese. उसने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। कुछ नहीं बेटा, उसने सिंपली क्या किया था, मोनेरा को सब डिवाइड कर दिया था। किसके अंदर किया उसने, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के अंदर। तो एक किंगडम, दो किंगडम, ठीक है, और चार हमारे दूसरे हैं। कौन से, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। 1, 2 एंड 4 तो कितनी होगी बेटा, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गई।
मोनेरा को उसने 2 डोमेन में बांट दिया और जो बाकी बचे वो 3rd डोमेन में आ गए और किंगडम कितने बन गए? 6 किंगडम। ठीक है, उसने कहा कि ये एक डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है और ये सारे तीसरे डोमेन में आ गए, लेकिन किंगडम कितने बन गए? 6, जिसको आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। क्लियर है? यस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. 5 kingdom classification को ही फॉलो किया गया और देखा गया कि क्या इश्यू आ रहे हैं, किस चीज को कंसीडर किया गया इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ठीक है, अर्लियर classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperm under plants. पहले की किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सारे ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स के अंदर रख दिया था। ठीक है, द कैरेक्टर that unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells. और क्या कैरेक्टरिस्टिक लिया कि इनकी सेल्स में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक कैरेक्टर तो मिल रहा था लेकिन बाकी नहीं मिल रहे थे। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोट। यानी कि प्रोकैरियोट्स को किसके में रख दिया? यूकैरियोट्स में। बस हम ये देख लिया गया था कि सेल वॉल है या नहीं है। सेल वॉल है तो वो प्रोकैरियोट भी है और यूकैरियोट भी हो सकते हैं। और उसने क्या कर दिया था? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर को भी साथ में रख दिया था, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic group, that is fungi, and the autotrophic group, plants. तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई डिफरेंशिएशन नहीं था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उनका। ठीक है, बट क्या उसने देखा? दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कॉम्पोजिशन, दैट फंगी हैड काइटिन एंड देयर वॉल्स while the green plants had a cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom, that is kingdom fungi. जब ये देखा गया कि सेल वॉल की जो कॉम्पोजिशन है उसका मेटीरियल ही अलग है, तो उन्होंने फंगस को एक अलग किंगडम में रख दिया। ठीक है, सारे के सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किंगडम वनेरा के अंदर रख दिया। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उसको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। ठीक है, सो किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जिनको पहले एल्गी में रखा गया था प्लांट्स के अंदर, क्योंकि दोनों में क्या थी? सेल वॉल थी, लेकिन अब इनको डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर द यूकैरियोट्स। ठीक है, किसके साथ रख दिया? विद पैरामीशियम एंड अमीबा, जो कि वो भी क्या थे? एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और इन पैरामीशियम और अमीबा को पहले एनिमल किंगडम के अंदर रखा था, लेकिन अब इन सबको किसके अंदर रख दिया? प्रोटिस्टा के अंदर। जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, चाहे वो पहले प्लांट में था चाहे वो एनिमल में था। दे पुटेड ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इन द प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स इन विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। पहले वो डिफरेंट किंगडम में थे। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया बेटा कि यूनिसेलुलर तो प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे, तो अपने आप से उनकी जो शफलिंग थी वो होनी थी। This kingdom of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. ये आगे भी होगा, अगर हम अपने क्राइटेरिया चेंज करते तो आगे भी चेंज आ सकता है। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities
but is also phylogenetic, that is the based on evolutionary relationship. अगर आगे और अटेम्प्ट हुए तो हम इनके साथ साथ फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक भी कंसीडर करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनिज्म से इवोल्व हुआ, यानी कि उसके एंसेस्टर क्या है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी of the Whittaker system of classification, because that was accepted one. The kingdoms Plantae and Animalia, commonly referred to as the plant and animal kingdom, we will study separately in chapter 3rd and chapter 4. Clear है बेटा? NCERT is very important book and you should know each and every word. You should understand the meaning of each and every word of NCERT. So try to understand or read NCERT line by line. If you have any doubt, even in any word, then you can ask me from in comment box. Please write down your doubt in comment box and ask. I will clear your doubt. Till then, beta, keep studying, keep growing.